टीजीटी पीजीटी ऐड कर लिए, लोग 0 हैं। So we have begin with good morning everyone, but there is just one student over there. Already time is running late, 5 minutes are gone by. Where are you all? We have begin with this unit, structural organization in animals. We are doing zoology, or zoology में structural organization में we are doing this animal tissues, where we have done the epidermal tissues. Okay, I'll show you the leaderboard. This test and the next test together. Okay, the test you are going to have. Wait a minute.
आओ भाई, लीडर बोर्ड दिख रहा है में, लीडर बोर्ड इज एयर। 62.74 गए 96 में से, आउट ऑफ 96। एवरेज ग्रेड बी रहा है, 43 स्टूडेंट्स ने अपियर करा है। एंड रैंकिंग इस हिसाब से है, सुनसिरम 86 आउट ऑफ 96। आपको अपने देखने हैं, आपके बता देती हूँ। लीडर बोर्ड में आपको बाकियों के मार्क्स देखने हैं कि हाईएस्ट कितने गए हैं। व्हाट इज योर एम ऑफ knowing this leaderboard? You got 78 out of 96. Okay, your position is 12th, and beyond you, 11 students are there. Bear, Ati, Bear Roman has attempted twice. Manju, Digi, Rubu, Nich, Hibu, Teg, Galina, and Samsiram. Okay. चलो बाकी अभी आएंगे तब भी स्टार्ट हो जाएगा। विल बी स्टार्टिंग। वे आर द ऑल स्टूडेंट्स टुडे? बाकी प्रीवियस क्लास में भी is there anything happening over there in your state or city that nobody is attending the class today? चलो एनीवेज, अपने को तो आगे बढ़ना है। हमने 4 टिश्यूज के नाम करे थे कल, हमने एपिडर्मल टिश्यूज पढ़ा था, ठीक है। टुगेदर विद दैट वी हैव स्टार्टेड विद नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज में और एपिडर्मल टिश्यूज में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वर देयर। सिंपल में सिंपल स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आर देयर, ओके, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, सिलिएटेड और ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस के साथ। देन ग्लैंडुलर वर देयर, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन। Then their release of or secretion of exocrine glands, merocrine, apocrine, and holocrine. Then there were the different junctions. Now we'll be starting with nervous tissue. Although we have done nervous tissue yesterday, थोड़ा सा एक quick revision करते हैं. Nervous tissue, it is made up of neurons. Neuron is the smallest unit of central nervous system. Okay, it has neuroglial cells which support this neuron. Neuron is the longest cell. ठीक है, it forms the longest cell in human body. और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ह्यूमन oocyte सेल, मतलब फीमेल एग सेल। देयर इज नो डिवीजन इन द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन, सो देयर इज नो रीजनरेशन इन दिस केस। न्यूरॉन के कंसिस्ट करते हैं तो 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी, साइटोन और पेरिकियन और सोमा, वो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है जिसमें न्यूक्लियस इज देयर। न्यूट्रिएंट्स और आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए निसल्स ग्रैन्यूल्स आर देयर, ओके। द इनकमिंग एक्सटेंशंस, डेंड्राइट्स, which receives impulse from other neurons and pass it to this neuron's cell body, okay. After that what happens? This neuron impulse, the cyton portion does all the mixing of interneuron, interrelated neural study. Then these neural information or nerve impulse passes on through this axon. And what is this axon? Axons are the extensions, like dendrites are the afferent processes which brings the information, okay. And this axon are the efferent processes. Axons are the efferent processes which conduct impulse away from the cell body, which brings towards the cell body. Efferent, which afferent, and efferent, which takes away. Okay, then connective tissue is there. Connective tissue mein, we have to begin with connective tissue. Where is everyone today? Just a single student, May, is there? May, can you tell me what happened with others also? Any idea, May? Where is everyone around? Chalo, I'll be beginning with, I can't wait. We have to begin with connective tissue. It is found most abundantly in animals. In humans and animals, if we talk about, connective tissue is the most abundant tissue, because जितने भी body में muscles हैं, bones हैं, मतलब all the organs which are there, they are connected by these tissue. देखो आप body में, आप देखो blood की supply कितनी surplus है, blood is one of the connective tissue. पूरी body हमारी skeletal framework की बनी है,
And again, skeletal framework or bone or cartilage, which are the soft bones, softer than bones. Okay, they are also connective tissue. Still, the tissue present on our skin, areolar tissue beneath the skin, fatty adipose tissue that stores fat. Okay, tendons, ligaments. There are many types of connective tissue. So it forms the abundant of all. एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इसमें मैट्रिक्स होता है इस टिश्यू में. ठीक है, इसका फंक्शन होता है मेन लिंक और सपोर्ट करना अदर टिश्यूज को इन द बॉडी, बाकी टिश्यूज को कनेक्ट करके रखता है. इनका मेन फंक्शन होता है टिश्यूज में लिंक और सपोर्ट करना बाकी टिश्यूज को. ओके, कनेक्टिव टिश्यूज सारे एक्सेप्ट ब्लड कुछ ना कुछ इंसॉल्युबल फाइबर्स सिक्रीट करते हैं. फाइबर्स विच आर द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन कनेक्टिविटी. दे आर इलास्टिन एंड कोलेजन. जो फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिन एंड प्रोटीन्स होते हैं, इलास्टिन कोलेजन होते हैं, और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं. दे हेल्प इन फॉर्मिंग द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर सिक्रीट करते हैं. इकलौता सिर्फ एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर सिक्रीट नहीं करता, वो होता है हमारा ब्लड. ब्लड डजंट सिक्रीट एनी फाइबर. ओके, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज को. कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें इलास्टिन और कोलेजन है. ये फाइबर क्या करते हैं? इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये टिश्यूज जो है कनेक्टिव टिश्यू कई बार मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी सिक्रीट करते हैं, जो कि मैट्रिक्स में एक्यूमुलेट होके सेल्स और फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. देखो, अगर स्ट्रक्चर देखे तो एक तरह से ये स्ट्रक्चर है सेल में, जिसमें ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, कुछ सेल्स मैक्रोफेजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है इसके मैट्रिक्स में. और ये फाइबर्स जो हैं ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं. ओके, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स. टाइप्स देखिए, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड के नाम पे देयर इज ओनली वन सिंगल टिश्यू, दैट इज ब्लड. प्रॉपर में आपका लूज और डेंस दोनों टाइप के टिश्यूज हैं. मैम के भी नहीं आए थे, पता नहीं क्या होंगे आज. सर डालते हैं ना, बट आई एम नॉट सपोज टू. ओके, चलो एनीवेज हम आगे देखते हैं. प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, supportive connective tissue and fluid connective tissue. Three type of tissues of connective tissues are of three types. Okay, fluid connective tissue is the only tissue which has liquid, that is blood, and it doesn't have any fibers produced by them. Proper connective tissue is the loose connective tissue and dense connective tissue. Proper connective tissue is of two types, loose and dense, depending upon whether the fibers are loosely arranged within the cells or they are densely packed. If they are loosely arranged, if the fibers which are released in the cell cytoplasm, देखो होता क्या है, this tissue is like this. If this is this tissue, if this is the connective tissue, okay, if this is the connective tissue और ये इसका matrix है, this is the matrix region. Matrix means ground substance. जैसे ground tissue था प्लांट्स में, इसमें ऐसी ये ग्राउंड सब्सटेंस है. अब यहां पे डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर दोज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स? दे कैन बी मोनोसाइट्स,
इम्यून सेल्स हैं ये, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ये इम्यून सेल्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज देयर विद इन दिस सेल्स? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की खास बात क्या है कि ये क्या सिक्रीट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स? दे हैव फाइबर रिलीजिंग एबिलिटी। स्पेशल फाइबर्स बनते हैं इलास्टिन एंड कोलेजन प्रोटीन के, ये फाइबर्स रिलीज होते हैं। दीज आर द फाइबर्स जो फाइब्रोब्लास्ट रिलीज करता है। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो कोलेजन हो सकता है, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए, और इलास्टिन हो सकता है। और ये क्या होते हैं फाइबर्स? दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। और यही फाइबर्स हैं जो कनेक्शन में हेल्प करेंगे दिस कनेक्टिव टिश्यू विद अनदर टाइप ऑफ टिश्यू और मसल और एनीथिंग। जो भी बॉडी में ऑर्गन है, टू ऑर्गन्स या टू मसल्स, ठीक है, किसी चीज को भी कनेक्ट करने के लिए, बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए, बोन को मसल से कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टिश्यू इज देयर। तो कनेक्टिव टिश्यू के ये फाइबर्स हेल्प करते हैं इस काम में। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कनेक्टिव टिश्यू का, बेसिक स्ट्रक्चर। अलग अलग टाइप का होगा तो अलग होंगे। अब अगर इसके फाइबर्स, ये जो फाइबर्स है अगर ये लूजली अरेंज्ड है, देखो these are the fibers which are loosely arranged, then it forms loose connective tissue. Loose connective tissue when fibers are loosely arranged. When fibers are densely arranged, compactly arranged in a special orientation, how are they arranged? अगर मैं इसकी मार्किंग करूं, if this is the 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6, 7, 8. These fibers are arranged in a proper orientation and tightly packed. They are dense connective tissue. Loose and dense depending upon the orientation and direction of these fibers released by fibroblast cells. Okay? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू इस हिसाब से है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कैन बी एरियोलर और एडिपोज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैन बी टेंडन्स, लिगामेंट्स और वाइट फाइबर्स। ठीक है, तो इन दोनों को भी पढ़ते हैं, लूज एंड डेंस को हम आगे। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में हमने क्या पढ़े अभी? दो नाम, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। स्किन हमारा एपिडर्मल टिश्यू बनाता है, एपिडर्मल, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्किन हमारा क्या था? एपिथेलियल टिश्यू था। एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे हमारा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? इफ यू टॉक अबाउट स्किन, if skin is the epithelial tissue, then what is the connective tissue? Which type of connective tissue is found beneath the skin? ये क्वेश्चन अगर आए तो beneath the skin के लिए याद रखना है आपको, it is areolar tissue. beneath the skin what is there? beneath the skin अगर ये वर्ड आता है तो इट इज एरियोलर टिश्यू। ओके, तीन टाइप के सेल्स और दो टाइप के फाइबर्स। सेल्स कितने टाइप के हैं? तीन, और फाइबर्स दो टाइप के प्रेजेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट है हमें पता है। कोलेजिन और इलास्टिन प्रेजेंट होते हैं। कोलेजिन टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ, और अगर टिश्यू कई बार डैमेज हो जाता है इंटरनली तो टिश्यू के रिपेयर के लिए कोलेजिन इज देयर। और इलास्टिन किस लिए है? इलास्टिन है किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस से, कोई भी झटका लग रहा है, शॉक लग रहा है, तो शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है ये, जैसे हम गिर जाते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेस से रिलीविंग विच टिश्यू, विच फाइबर? इलास्टिन फाइबर। ये तो हो गए दो टाइप के फाइबर्स जो हम बात कर रहे हैं, इलास्टिन एंड कोलेजिन। और तीन टाइप के जो सेल्स है उनमें से सबसे पहले है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। तीन टाइप के सेल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फ्लैट सेल्स हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं? यही वाले दोनों फाइबर्स अभी हमने बात करी थी। ठीक है, और मैक्रोफेज क्या है? अमीबा की शेप के होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं फेगोसाइटोसिस की तरह।
अमीबा की तरह फेगोसाइटोसिस करते हुए पैथोजन या माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और मास्ट सेल्स क्या होते हैं? ये हिस्टामिन स्टोर करते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर है। कोई भी अगर ऐसी रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन, उस दौरान ये हिस्टामिन रिलीज होते हैं। कि व्हेन यू वांट टू स्नीज, कब करते हैं हम स्नीज? कभी भी कोई एलर्जन आसपास हमारे होता है, वी स्टार्ट स्नीजिंग, तो हमारी बॉडी का वो इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म है कि दैट एलर्जन विच इज गोइंग टू एंटर इन आवर बॉडी, इट इज गोइंग टू बी इरप्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ स्नीज। तो स्नीजिंग के थ्रू कोई भी ऐसा एलर्जन अगर बॉडी के आसपास पैथोजेनिक माइक्रोब एलर्जन की फॉर्म में एंटर कर रहा है, तो बॉडी इज रेडी टू प्रोवाइड द डिफेंस टू इटसेल्फ बाय प्रोड्यूसिंग दीज हिस्टामिन्स। ज्यादा अगर स्नीजिंग आती है तो हमें एज अ मेडिसिन एंटी हिस्टामिन लेनी पड़ती है। एलर्जन ने बॉडी पे अटैक किया तो बॉडी ने क्या करा? स्नीजिंग करी। स्नीजिंग क्यों करी? क्योंकि हिस्टामिन्स ने कहा कि हमें जो बाहर जो हमारा जो पैथोजन है, फॉरेन एजेंट बॉडी में आ रहा है, वी हैव टू रिमूव इट आउट। तो इसलिए हिस्टामिन्स ने रिलीज होना शुरू कर दिया काफी ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा सीरियस एलर्जी हो जाती है किसी को, तो वो एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा रेट में हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। ऐसे में पिल्स ली जाती है, एंटी हिस्टामिनिक पिल्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी पिल्स, ताकि एलर्जिन वाली चीज को और एलर्जी के अगेंस्ट डिफेंस को भी थोड़ा कम कर दिया जाए। ठीक है, डिटेल में हम इसको इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये मास्ट सेल्स रिलीज हिस्टामिन्स व्हिच आर इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, and these are the type of cells found in alveolar tissue. Tissue है, tissues are made up of cells. How many cells? 3 type of cells. Areolar में fibroblast cells, macrophages and mast cells. Okay, I hope this is clear. Areolar, yes बेटा आरटी। नेक्स्ट आते हैं एरियोल के बाद एडिपोज टिश्यू। एडिपोज पोज का मतलब ही यहाँ पे है दे स्टोर फैट। इनके पास क्या है? इनका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये किसको स्टोर करते हैं? ये फैट को स्टोर करते हैं। जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको फैट की फॉर्म में स्टोर करेंगे। कौन से सेल्स में? इनके स्पेशल सेल्स है एडिपोसाइड सेल्स। ओके, यहाँ पे सेल्स क्या थे कनेक्टिव एरियोलर में? एरियोलर के सेल्स कौन कौन से थे हमारे? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम एडिपोज की बात करें तो एडिपोज के स्पेशल सेल्स कौन से हैं? एडिपोसाइट सेल्स। ये भी स्किन के बीनीथ फाउंड होते हैं, बट इंसुलेटिंग लेयर की तरह प्रेजेंट होते हैं हीट लॉस को बचाने के लिए। शॉक, मैकेनिकल स्ट्रेस, इन सब के लिए हमारे पास एरियोलर था। यहाँ पे इंसुलेटिंग लेयर की तरह जो प्रेजेंट है बीनीथ द स्किन है फैट को स्टोर करने के लिए, वो हमारा कौन है? एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू में बाकी सेल्स भी, ऐसा नहीं है फाइब्रोब्लास्ट नहीं है। अगर फाइब्रोब्लास्ट नहीं होंगे तो फाइबर्स कैसे बनेंगे? कोलेजन ऑफ इलास्टिन तो इंपॉर्टेंट फाइबर्स है, दे आर बीइंग फॉर्म्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट तो डेफिनेटली है, मैक्रोफेजेस भी हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, बट टुगेदर विद दैट एडिपोसाइट सेल्स आर आल्सो देयर इन द एडिपोज टिश्यू। ओके, देखो दोनों के स्ट्रक्चर्स। एरियोलर टिश्यू में क्या क्या दिख रहे हैं आपको? पर्पल कलर के ये फाइब्रोब्लास्ट, ये पर्पल कलर के फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं और ये कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम देम अमीबा शेप के मैक्रोफेजेस आर देयर। ठीक है, सिंपल आपके मास्ट सेल्स भी है हिस्टामिन प्रोड्यूस करने के लिए। मास्ट सेल्स कई बार मोनोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइबर्स जो रिलीज कर रहे हैं, दीज आर द कोलेजन फाइबर्स। ये हुआ एरियोलर टिश्यू। अगर एडिपोसाइट सेल्स की बात, एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर जो है फैट स्टोरेज का एरिया है, सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये एडिपोसाइट सेल्स है। एडिपोज टिश्यू का ये प्रॉपर एडिपोसाइट सेल दिखाया जिसमें फैट स्टोर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। अभी हमने बात करी है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, फाइबर्स लूजली अरेंज्ड है। एरियोलर एंड एडिपोज की बात करी है, हम पढ़ रहे हैं अभी कनेक्टिव टिश्यू। 4 टिश्यूज है हमारी, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव। हम उसमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर है, सपोर्टिव है, फ्लूइड है। हम यहाँ पे प्रॉपर में लूज पढ़ रहे हैं, लूज और डेंस है। लूज में हमने एरियोलर और एडिपोज पढ़ लिया है। नाउ वी आर स्टडिंग डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें टेंडेंस, लिगामेंट्स और फाइबर्स आएंगे, व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, डेंस का मतलब है जो इसमें फाइबर्स हैं वो डेंसली पैक्ड हैं। ठीक है, द फाइबर्स एंड द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद बहुत लिटिल मैट्रिक्स, बहुत कम उनमें स्पेस खाली है। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगर रेगुलर है तो मतलब अरेंज इसमें रेगुलरली पैटर्न्स अरेंज है। डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर, दो टाइप के हैं। रेगुलर में हमारे टेंडेंस आते हैं और इररेगुलर में हमारे लिगामेंट्स आते हैं। ये जो है हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स लूजली अरेंज्ड है। तो किसके थे ये अंडर? इसके अंडर में कौन आ रहा था लूज में? एरियोलर एंड एडिपोज। एडिपोज से एकदम फैट याद रखना, बाकी दोनों में सिमिलैरिटी है।
Areolar and adipose are coming within this, underneath this heading, loose connective tissue. Dense की अगर बात करें तो dense में 2 टाइप के हैं, regular and irregular. Dense में भी क्या है, regular एंड इरेगुलर. ये जो मैंने यहाँ शो करा है रेगुलर शो करा है. अगर मैं इसका इरेगुलर शो करती तो ये हैपहैजर्डली फैले हुए होते, बट ये स्पेस नहीं होती. ये जो स्पेस है ये लूज वालों में आती है. दिस स्पेस इज फाउंड इन लूज वंस, लूज कनेक्टिव टिश्यू. डेंस में देयर इज नो सच स्पेस. डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर. रेगुलर में आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे टेंडेंस जो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं, देज आर टेंडेंस. एंड इरेगुलर में है लिगामेंट्स जो बोन को बोन से कनेक्ट करेंगे. बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय अ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज लिगामेंट. ठीक है, तो यही चीज पढ़ रहे हैं हम रेगुलर एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में. लिगामेंट देखो, हाँ पहले डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर है, रेगुलर पैटर्न होता है फाइबर्स का इसमें प्रेजेंट. ठीक है, और जो रेगुलर पैटर्न है फाइबर्स का वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए है. ठीक है, कोलेजन फाइबर्स इसमें होते हैं, रोज में प्रेजेंट होते हैं. कोलेजन फाइबर्स होते हैं, रोज में प्रेजेंट होते हैं पैरेलल बंडल की तरह. ठीक है, इफ दिस इज द टिश्यू तो इसमें ऐसे रोज होंगी प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 इस तरह से विद वेरी लेस स्पेस. कोई हैपहैजर्डली नहीं फैले हुए हैं. ठीक है, टेंडेंस कनेक्ट किसको किससे, टेंडेंस किसको कनेक्ट करते हैं, मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं. बहुत बार पूछ ली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेंडेंस किसको किससे कनेक्ट करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं. इसमें फाइबर कौन से हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, ये ऑक्यूपाई करते ज्यादातर मेन पोर्शन. ठीक है, टेंडन सेल्स किस में फाउंड होते हैं, रोज में फाउंड होते हैं क्योंकि वो क्या है, डेंस रेगुलर है. और इलास्टिन फाइबर्स इसमें एब्सेंट होते हैं. इंपॉर्टेंट, टेंडेंस के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट. रेगुलर है, और रेगुलर में कौन से फाइबर्स अरेंज्ड है, कोलेजन फाइबर्स अरेंज्ड है. टेंडेंस में इलास्टिन फाइबर्स नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देखो मैंने यहाँ दिखाया है, नी बोन है आपका, ये फीमर आपका लॉन्गेस्ट बोन होती है, थाई बोन. ठीक है, ये फीमर की बोन है एंड दिस इज योर थाई बोन. ठीक है, काव मसल से, सॉरी, दिस इज द काव मसल बोन एंड दिस इज द थाई बोन. अब ये जो दो बोन है, आई एम जूमिंग इट, यहाँ पे देखो थाई पोर्शन में ये बोन है, साथ में इसके यहाँ पे ये रेड कलर का पिंकिश कलर का मसल कौन सा है, ये मसल है. पिंकिश कलर का क्यों है, क्योंकि इसमें भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मसल का अपना हीमोग्लोबिन होता है which gives it a pinkish appearance. तो पिंकिश कलर का क्या है, ये मसल है, दिस इज द बोन. अब ऊपर जो मसल है, ठीक है, इस मसल को बोन से नीचे आते आते कनेक्ट होना है. यहां पर जो बोन है, नी बोन, पटेला कहते हैं इसको, नी कैप, ये भी बोन है. इस बोन को ऊपर की मसल से, पटेला बोन जो नी बोन है, इसको ऊपर की थाई मसल से कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट पोर्शन इज देयर इन, सॉरी, टेंडन इज देयर इन बिटवीन. मसल को कनेक्ट कर रहे हैं हम बोन से नी पोर्शन में, टेंडन इज देयर इन बिटवीन बोन एंड मसल. और वहीं अगर लिगामेंट की बात करें तो नीचे की जो आपकी काग मसल्स की बोन है फीमर, और ऊपर का जो ये नी बोन थी पटेला, तो दोनों बोन को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट इज देयर इन बिटवीन. ठीक है, अगर ऊपर मसल को बोन से कर रहे हैं टेंडन इज देयर, और बोन को बोन से कर रहे हैं तो लिगामेंट इज देयर. आई होप दिस इज क्लियर. खास बात, टेंडन में इलास्टिन फाइबर्स नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये. अब डेंस इरेगुलर की बात करें, जो फाइबर्स है उनका ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है. इलास्टिन होता है ऐसे, बट बहुत कम होता है, इलास्टिसिटी नहीं है. इलास्टिन फाइबर्स बहुत कम होते हैं, ज्यादातर कोलेजन फाइबर्स हैं जो डिफरेंट ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं. तो ये डिफरेंस का पॉइंट बन जाता है लिगामेंट और टेंडन का. टेंडन रेगुलरली अरेंज्ड, लिगामेंट इरेगुलरली अरेंज्ड. टेंडन्स हैव no elastin, only collagen. Ligaments have collagen as well as few elastin proteins are also there. Okay, tendons connect bone to muscle, ligaments connect bone to bone. Okay, देखो यहाँ पे दिखाया है फुट रीजन में phalanges हैं ये. ठीक है, एंकल बोन है, यहाँ पे लिगामेंट की कनेक्टिविटी है, ऊपर से मसल आ रही है नीचे,
टेंडेंस है, तो ये जो बोन और मसल को कनेक्ट करने के लिए है, तो तब तो टेंडन प्रेजेंट है। और अगर बोन टू बोन है, अपर बोन और लोअर बोन, इसे कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट इज प्रेजेंट। देखो, अगर मसल आ रही है, मसल को नीचे कनेक्ट करना है हमें बोन से, तो टेंडन इज देयर। और अगर बोन को पीछे जो बोन पोर्शन है और बोन को बोन से ही कनेक्ट करना है, तो लिगामेंट इज देयर। ओके, देखो व्हाइट फाइबर टिश्यूज। अब ये थर्ड टाइप ऑफ आपके प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें क्या होता है, ये ज्वाइन करते हैं किसको, जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द स्कल बोन्स एंड आर इमूवेबल। ये मूवमेंट के लिए नहीं है, ये होते हैं जॉइंट्स में। कहां पे प्रेजेंट, स्कल पोर्शन में, स्कल के बीच में जॉइंट से, सूशर्स कहते हैं उनको, और इनमें मूवमेंट नहीं होता। आपका ऐसा नहीं है कि हेड का ये वाला हेमिस्फीयर अलग डायरेक्शन में जाएगा या ये वाला हेमिस्फीयर अलग डायरेक्शन में जाएगा। इफ आई एम मूविंग माई हेड, आइदर इट कैन गो इन राइट, इट कैन बी स्ट्रेट, और इट कैन गो लेफ्ट। ओके, राइट लेफ्ट स्ट्रेट, ऐसा नहीं है अलग अलग पोर्शन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, बिकॉज द जॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द हेड स्कल, दे आर इमूवेबल। और उसमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। इसमें कोलेजन के थिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दस दे आर ऑफ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। बहुत ज्यादा थिकनेस होती है कोलेजन फाइबर्स की प्रेजेंट की वजह से। और बहुत कम इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, जो कोलेजन के अलावा कुछ और बनाएंगे। इलास्टिन भी यहाँ पे नहीं है। ओके, चलो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं हम। अभी हमने चार्ट वो जो पढ़ा था, उस चार्ट में हमने देखा कि हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में लूज पढ़ लिया, कम है फाइबर्स, ज्यादा है मैट्रिक्स, एडिपोज एंड एरियोलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स में स्पेस बहुत कम है, बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट द्वारा प्रोड्यूस्ड, एंड वो फाइबर्स या तो रेगुलरली अरेंज्ड है इन केस ऑफ टेंडेंस, या इरेगुलरली अरेंज्ड है इन केस ऑफ लिगामेंट्स। या व्हाइट फाइबर्स है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बहुत फ्यू हैं, स्कल बोन, लिगामेंट, बोन टू बोन, टेंडेंस, बोन टू मसल। टेंडेंस में इलास्टिन नहीं है, व्हाइट फाइब्रस में इलास्टिन नहीं है, लिगामेंट्स में फ्यू इलास्टिन के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब आते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बॉडी को अब ये प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। स्केलेटन फ्रेमवर्क हमारा जो है, बोन्स, और साथ में कार्टिलेज यानी सॉफ्टर टिश्यूज। ठीक है, बोन्स कैसी हो सकती है, कॉम्पैक्ट या स्पॉन्जी हो सकती है। ओके, और कार्टिलेज कैसे है, हेयरलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ये दो चीजें पढ़नी है अब अपने को, बोन्स एंड कार्टिलेज। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल से अलग बनेंगे अब इनमें सेल्स। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका मैट्रिक्स जो बोन का होता है हाईली कैल्सिफाइड होता है, मतलब कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कैल्सिफाइड होने का मतलब ये है। एक मिनट बेटा। बेटा अभी थोड़ा सा ना कुछ इश्यू आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम एक बार रीस्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। ओके, वी आर ट्राइंग टू रीस्टार्ट द क्लास। अबे यार,